Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are preparing pretty well for the scientist B examination and you have already filled the form. I have updated one shorts related to the eligible subject list which was not provided earlier by ICMR. So now it is provided, so you can check it out. So let's start a very important unit, that is bioethics. In my previous few videos, I have covered the unit communicable disease, which will also be covered in the next part as well. But parallelly, I will also focus on other units because we don't have that much of time. So in our parallel unit, I have thought to provide you the important concept and questions from bioethics unit, which is very important. So these are the three headings which you have to focus on while preparing the bioethics unit for ICMR B, Scientist B. Ethical principles in research. What exactly are the principles and why they are required? What if we are not following the principle? Is there any code of misconduct or anything like that? What are the things which we have to take care while performing research? And that too when human subjects are involved. So all those things are covered in this ethical principles. And after that, responsible conduct of research. If you are carrying a research involving any such clinical or preclinical trial, you have to follow certain guidelines set by the higher authorities and higher regulatory bodies. So what are those things, and what if you are violating it, and the consent process. So you have to focus on all these three pointers. So first of all, I will provide you that basic information about bioethics because most of you are not aware about what exactly is bioethics. So let me just clear it in simple sentences that bioethics is a interdisciplinary study. It means it is concerned with different other aspects, different other subjects as well. Like it is concerned to ethical, social, and legal issues. So it is not only concerning to a single point, but it is interdisciplinary. It is correlating each and every subject, every aspect, like ethical, social, and legal issues arising from advances in biomedicine, biotechnology, and the life sciences. It means if you are carrying out a research, if you are carrying out a research, then it might have a positive outcome. It might have a positive outcome or a negative outcome. We don't know. It might be positive, it might be negative. Most of us focus on that it should be a positive, but it is not at all sure कि positive outcome ही आएगा. So if you are carrying out any kind of research, so there might be two possibilities, positive and negative. So what are the consequences out of that? Suppose if you are carrying out a research, if it has positive outcome, then what are the consequences? And if it is a negative outcome, then what are the consequences? So you have to take care of all these situations while carrying a research. Now, what is the purpose of bioethics? It guides decision making in healthcare. Let me change the color. It guides decision making in healthcare, research, and policy by applying moral principles to complex dilemmas like genetic engineering, organ transplantation, and end of life care. So अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो सी मेडिकल साइंसेस, और अगर आप मान के चलिए एक रिसर्च फील्ड ही ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं. वाई इट इज़ सेंसिटिव, वाई रिसर्च इज सेंसिटिव? बिकॉज most of the research involved different kind of sensitive parameters, like if you are doing any such genetic manipulation to any of the gene, any of the organism, if you are making any GMOs, so genetic engineering wise, if you are doing anything, then it becomes a sensitive matter to discuss and to finalize the consequences of it. After discussing the consequences
And again, in consequences, we consider both, that if it is in our favor and if it becomes against the favor, so what it might be. And if you are talking about organ transplantation, suppose kidney transplantation, so what are the outcomes? अगर एक डोनर से आप रेसिपिएंट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किडनी, सो क्या क्या लीथल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं रेसिपिएंट के एंड ऑल्सो जो डोनर दे रहा है उसे. यहाँ पे हम डोनर और रेसिपिएंट दोनों का ही कंसिडर करेंगे इक्वली, नॉट जस्ट ओनली द रेसिपिएंट. सो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है. एंड एंड ऑफ लाइफ केयर. सो ऑल दीज पैरामीटर्स requires a very deep discussion, a thorough discussion. एंड ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके आउटकम जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. तो आउटकम को अगर हम डिस्कस करते हैं, कभी भी सिंपल सी बात है, अगर आप ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे हो, राइट, साइंटिस्ट बी का, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं. या तो आप रिटन क्वालिफाई कर लोगे, या तो आप रिटन क्वालिफाई नहीं करोगे. तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन दो. सो लाइकवाइज रिसर्च में भी ऐसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम दोनों होते हैं. लेकिन हमारे हाथ में क्या होता है, हम ये नेगेटिव का जो पॉसिबिलिटी है उसको जितना मिनिमाइज कर सके. अब ये मिनिमाइज कैसे होगा? जितना हम पॉजिटिव होने के पैरामीटर्स को अपग्रेड कर देंगे, हम बढ़ा देंगे, उतना ही हमारा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होने का चांस कम हो जाएगा. सो अब समझ में आया बायोएथिक्स क्या इंश्योर करता है. बायोएथिक्स मॉरल प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है कि कभी भी कोई चीज़ करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो उसके जो भी आउटकम्स आएंगे, जो भी रिजल्ट्स आएंगे, उसके नेगेटिव होने की या फिर उसका फेटल या लीथल कॉन्सिक्वेंसेस होने के चांस कम हो जाए, ये चीज़ इंश्योर करता है. एंड ऑल्सो अगर रिसर्च कैरी हो रहा है तो वो सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो होके हो. ऐसा नहीं कि बस सोचा कि मुझे क्लिनिकल ट्रायल करना है एंड विदाउट डूइंग एनी सच फॉर्मेलिटीज यू आर कंडक्टिंग इट. नो. सो ये करता है बायोएथिक्स. यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. सो एक क्वेश्चन है, बेलमोंट रिपोर्ट एम्फेसाइजेस विच 3 कोर प्रिंसिपल्स. सो बेलमोंट रिपोर्ट जो है, यहाँ पे एथिक्स के जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम मतलब सारे ही पीवाईक्यू तो एक भी नहीं है, ऑल आर लाइक इंस्पायर्ड बाय दी पीवाईक्यूज ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ICMR. सो जो बेलमोंट रिपोर्ट है, इट इज़ अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट इन रिसर्च एथिक्स, जो कि 3 प्रिंसिपल्स को मिला के बना हुआ है, जो कि है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, बेनिफिसेंस एंड जस्टिस. तो जो बेलमोंट रिपोर्ट है वो हमारे रिसर्च का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एंड इसका जो अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, सो इट इज़ अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट. ठीक है. और ये हमारे रिसर्च एथिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. और ये 3 कोर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जो पर्सन्स बेनिफिसेंस है और रिस्पेक्ट फॉर पर्सन एंड इसके अलावा जस्टिस. ये 3 चीज़ों में ये बेस्ड है. अब ये क्यों क्रिएट किया गया था? इट वॉज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू हिस्टोरिकल अब्यूजेस लाइक दी. अब कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आगे वाले क्वेश्चंस में देखो. कभी भी कोई रिसर्च होता है तो किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी ग्रुप तो दूर की बात है, किसी भी इंडिविजुअल के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए. जस्टिस शब्द का मतलब समझ आया. जस्टिस प्रिंसिपल क्यों रहा होगा? मतलब पास्ट में कभी किसी ना किसी के साथ में अनफेयर हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जामिनेशन देते हैं, अगर एक सेंटर पे भी पेपर लीक होता है तो उस पूरे एग्जामिनेशन को क्या किया जाता है? कैंसिल कर दिया जाता है, राइट. इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? पेपर लीक तो एक ही सेंटर में हुआ है, बाकी में तो नहीं हुआ है. इसका मतलब ये होता है, कैंसिल करने का रीज़न, कि अगर 1000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उस लीक में अगर 10 बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एकदम तुरंत से तो रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता कि 1% इन्वॉल्व था या 2 या 3 या कितने. तो अगर 10% भी उसमें इन्वॉल्व है एंड हमने सिर्फ 2 को ही कॉट किया है, तो वो 8 का तो फ़ायदा हो गया.
बिना पढ़े ही वो लोग क्वालिफाई कर लेंगे, तो बाकी जो 992 लोग हैं उनके साथ अनफेयर होगा। तो इसीलिए ये मैं जितना कोशिश कर रही हूँ एथिक्स को नॉर्मल लाइफ से समझा के पढ़ाने की, ताकि आपके दिमाग में जाए वो बात, ठीक है। तो बेलमोंट रिपोर्ट इसलिए बनाया गया था कि कोई भी हिस्टोरिकल अब्यूजेस को रोका जा सके, किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। इसका एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, दी टस्की सिफिलिस स्टडी। यानी ये जो टस्की सिफिलिस स्टडी है, ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें हमें दो चीज़ें जानने को मिलती हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर रिसर्च। एंड जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल होता है तो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमारे पास हमेशा होना चाहिए। एंड उस इन्फॉर्म्ड कंसेंट में ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज, वेदर इट इज़ अ लीथल कॉन्सिक्वेंसेज, वो जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा उनका राइट है वो जानने का, ट्रांसपेरेंसी रखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये वाला जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है उसके बारे में नेक्स्ट में मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। मैं यहाँ पे ये बात आई इसलिए समझा दे रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बेलमोंट रिपोर्ट क्या है? जस्टिस, बेनिफिशियंस और रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स के लिए बनाया गया है। इन इंडियन बायोमेडिकल रिसर्च एथिकल गाइडलाइंस आर इशूड बाय ICMR. ICMR is the one who issues the ethical guidelines for different kind of research. For persons primarily relates to respect for person का क्या मतलब है? Risk minimization, fair subject selection, informed consent, compensation. So respect for person का मतलब है informed consent। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये टस्की से पहले स्टडी, जब भी क्वेश्चन आएगा तब मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एंड साथ ही साथ इसके जो कंसेंट रिस्क बेनिफिट असेसमेंट है वो भी फेयरली प्रोवाइड किया जाना चाहिए हर एक सब्जेक्ट को जो भी इन्वॉल्व है क्लिनिकल ट्रायल में। तो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन का मतलब है कि उस पर्सन से जैसे भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन सब्जेक्ट है, तो आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट उससे लेना एकदम ज़्यादा मैंडेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट, बेनिफिशियंस रिक्वायर व्हाट? इक्वल रिक्रूटमेंट, मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट एंड मिनिमाइजिंग हार्म, पेमेंट टू सब्जेक्ट्स, पब्लिक डिस्क्लोजर। सो बेनिफिशियंस क्या है? इट इज़ अ मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट एंड मिनिमाइजिंग हार्म, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा हो, लॉस मत हो। तो ये आंसर राइट है। तो बेनिफिशियंस का मतलब होता है कि जो भी रिसर्चर्स हैं वो पोटेंशियल बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करें एंड हार्म्स को मिनिमाइज करें। तो इसका मतलब समझ जाओ कि जो भी पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं इसको बढ़ाए एंड जो हार्म है उसको जितना हो सके मिनिमाइज करें, ठीक है। बेनिफिशियंस का मतलब ये हो गया। 4 क्वेश्चन अभी तक याद हो जाने चाहिए जितना मैं समझा के पढ़ा रही हूँ। नाउ नेक्स्ट, justice in research mainly concerns what? Data storage, fair distribution of risk and benefits, investigator authorship, grant writing. जस्टिस का मतलब क्या समझते हो? कि किसी भी तरह से अनफेयर ना हो किसी भी इंडिविजुअल के साथ जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व है। डेटा स्टोरेज ये किसी तरह से रिलेटेड है जस्टिस से? नो। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट, यानी फ़ायदा हो तो सब पर्सनस को कंसिडर हो, मतलब सब पर्सन को ध्यान में रख के हो, एंड अगर लॉस भी हो रहा है तो वो सभी बेयर करें। सो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क एज वेल एज बेनिफिट्स। ऐसा नहीं कि बेनिफिट हुआ तो 1 को गिना, रिस्क हुआ तो 10 को गिना, नो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बात करी थी, द अनएथिकल टस्की स्टडी वायलेटेड विच प्रिंसिपल मोस्ट? कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? जस्टिस, बेनिफिसेंस, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन और ऑल ऑफ द एबव। अब मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने जब ये फर्स्ट, मैं थोड़ा पीछे ले चलती हूँ, यहाँ पे क्या था? बेलमोंट रिपोर्ट क्या बताता है? रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। तो ये द अनएथिकल टस्की स्टडी वायलेटेड विच प्रिंसिपल मोस्ट? तो बेलमोंट को ही तो उसने वायलेट किया था। तो बेलमोंट किन 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड था? इन तीनों पे, इसलिए आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। अब ये क्या है? अनएथिकल टस्की स्टडी क्या है वो देखते हैं। तो ये जो टस्की स्टडी है
इट इज़ रिलेटेड टू अनट्रीटेड सिफिलिस इन निग्रो मेल्स, यानी कि जो निग्रो मेल्स थे उनमें सिफिलिस जिनको हुआ था उनको ट्रीट नहीं किया गया, यानी अनट्रीटेड रखा गया, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट उन्हें नहीं दिया गया। तो इसका पर्पस क्या था? एम ऑफ दैट रिसर्च वाज टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज व्हेन अनट्रीटेड, यानी वो ये देखना चाहते थे कि एक ग्रुप जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है और एक ग्रुप जो अनट्रीटेड हैं, तो अनट्रीटेड के आउटकम्स क्या हो रहे हैं टू द पॉइंट ऑफ डेथ एंड ऑटोप्सी। तो आप ये सोचिए, एक ग्रुप को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक ग्रुप को आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, एंड दैट टू इसमें फेटल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसे इग्नोर करके। सो देयर हैड बीन इफेक्ट, जबकि ऑल्दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस वर अवेलेबल, बट वो सिर्फ ये चेक करना चाहते थे कि अगर ट्रीट नहीं किया जा रहा है एक ग्रुप को, डिस्पाइट बीइंग दे आर डायग्नोस्ड विद साइफिलिस, सो उनके में क्या ऑप्शंस या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये देखा गया कि मोर देन 100 डाइड एज अ रिजल्ट। देखो, एक्सप्लेनेशन भी मैं इसीलिए डाली क्योंकि यही सब बायोएथिक्स में आएगा, तो जितने पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर सकती थी इसलिए मैंने हाईलाइट किया कि ज़्यादा नहीं भी पढ़ सकते हो तो हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ लो। तो सी, ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल था। यूज़ ऑफ पेनिसिलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस वाज वाइड स्प्रेड ऑफ 1945 से यूज़ उसका था, मतलब चलन में था, लेकिन यूज़ नहीं किया गया, अनट्रीटेड रखा गया ताकि देखा जा सके कि क्या आउटकम्स हो रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, ठीक है, और वो भी कौन थे? निग्रो मेल। नाउ अब इसमें वायलेट कैसे हो रहा है? दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द नेचर ऑफ द स्टडी, प्रॉपर ट्रीटमेंट वॉज विथहेल्ड। तो इस तरह से क्या हुआ, इतने सारे जो रूल्स हैं वो वायलेट हो गए। तो इसीलिए ये जो है वो, अगर ऐसा क्वेश्चन है ये ना लिख के आए, सिर्फ ये आए तो द अनएथिकल टस्की स्टडी वायलेट बेलमोंट प्रिंसिपल, ठीक है, वो तीनों पे बेस्ड है और ये अनएथिकल है। किसी को मार देना एक स्टडी के लिए, एक रिसर्च के लिए, विल बी नेवर एथिकल। हाँ, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कोई किसी को अगर हो जा रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम किसी को ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहे हैं अगर वो डायग्नोस्ड है तब भी, तो इट इज़ अ सीरियस अनएथिकल इशू। क्वेश्चन है, आईईसी अप्रूवल इज मैंडेटरी बिफोर डेटा एनालिसिस, पब्लिकेशन, स्टार्टिंग ह्यूमन रिसर्च, ग्रांट सबमिशन। सो आईईसी का अप्रूवल मैंडेटरी होता है बिफोर स्टार्टिंग ह्यूमन रिसर्च। एज ए टोल्ड, पूरा आपको एथिकल कमेटी को शो करना पड़ता है कि आप कितने सब्जेक्ट्स लेंगे, क्यों लेंगे, आउटकम क्या है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सब कुछ आपको डिस्कस करना होगा। देन ओनली आफ्टर द अप्रूवल यू कैन स्टार्ट योर क्लिनिकल ट्रायल। वल्नरेबल पॉपुलेशन इंक्लूड्स व्हाट? टीचर्स, प्रिजनर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट। वल्नरेबल पॉपुलेशन में कौन आते हैं? सो इट इज़ द प्रिजनर्स हु केम अंडर दिस वल्नरेबल पॉपुलेशन। बेस्ड ऑन एथिकल रिसर्च गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन, यहाँ पे दिया भी है एग्जैक्ट क्लॉज, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो ग्रुप होते हैं दैट में हैव लिमिटेड ऑटोनॉमी, पास लिमिटेड ऑटोनॉमी होता है, एंड और हैव डिमिनिश्ड कैपेसिटी टू प्रोवाइड ट्रूली वॉलंटरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी जो कि अवेलेबल नहीं है पूरी तरह से जो अपना इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे पाए। तो इसीलिए प्रिजनर्स को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज वल्नरेबल पॉपुलेशन इन रिसर्च एथिक्स बिकॉज देयर इनकार्सनरेशन इनहेरेंटली लिमिट्स देयर फ्रीडम, क्योंकि वो अब ऑब्वियसली वल्नरेबल इसलिए बोला गया है क्योंकि उनके पास फ्रीडम नहीं है कि वो प्रॉपरली अपना कंसेंट दे पाए, एंड देयरफॉर they are considered under this group. Assent is obtained from adult investigators, minor capable of understanding, sponsors. So assent is obtained from minors capable of understanding. यानी कि assent क्या होता है? It is defined as the affirmative agreement of a minor, a child or adolescent to participate in research. अच्छे से लिख लो अपने नोट्स में। एसेंट का मतलब है कि एक अफर्मेटिव अग्रीमेंट होता है जो कि माइनर्स से लिया जाता है कि वो रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहे हैं। It is specifically sought from those who are capable of understanding the procedures, risk and benefits at their developmental level, typically starting around age 7. Because minors are not legally competent to provide informed consent. Minors हैं तो वो informed consent तो दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनसे assent लिया जाता है, एंड उनसे लिया जाता है जो पूरी तरह से रिस्क बेनिफिट समझ पाएँ, अच्छे से समझाया जाए तो। सो दिस इज़ लीगली वैलिड परमिशन ऑफ अ पेरेंट और गार्डियन। यानी एसेंट लेने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा, एसेंट के साथ साथ गार्डियन से
लीगल वैलिड परमिशन भी लेना ज़रूरी है, बिकॉज़ गार्डियन के बिना तो आप अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो वो तो माइनर्स हैं, तो उनका सिर्फ माइनर्स के बेसिस पर आप कंडक्ट नहीं कर सकते स्टडी, आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी लगेगा। नाउ द 10th क्वेश्चन इज प्लेसिबो यूज इज एथिकली एक्सेप्टेबल वन when effective therapy exists, no proven intervention exists, sponsor demand cheap option. Placebo use is ethically acceptable when no proven intervention exist. प्लेसिबोज क्या होता है? इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर पिल, सलाइन इंजेक्शंस, जो कि क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ होते हैं एज कंट्रोल, ये देखने के लिए कि ड्रग का ट्रीटमेंट अगर दिया जा रहा है किसी पेशेंट को तो व्हाट आर द आउटकम्स एज कंपेयर टू द प्लेसिबो. रिस्क बेनिफिट असेसमेंट इज रिव्यूड बाय द IEC. रिस्क है कि बेनिफिट है किसी भी एक क्लिनिकल रिसर्च में या प्री क्लिनिकल ट्रायल में, तो वो कौन इवेलुएट करता है? IEC इवेलुएट करता है. So this is all for the day. I hope you liked it. Don't forget to subscribe the channel and thank you so much for watching.